A shocking incident, viewers, has come to light from Ranchi's posh Doranda area. Following a minor dispute, a Mercedes driver struck a young man and dragged him for several kilometers through the city streets, hanging him on the hood of the car. He also attempted to run over Home Guard personnel who tried to stop him. Police acted swiftly and arrested the accused. Manish Mehta is joining me from Ranchi. मनीष, आप हमें और क्या जानकारी दे सकते हैं? All right, viewers, we'll try and reconnect with my colleague. But this is another shocking incident, viewers. Since morning, we were tracking the very disturbing incident that occurred in Delhi, where a 23-year-old man lost his life. And now we're talking about another shocking incident that has come to light from Ranchi's Doranda area. And this is, viewers, just following a minor dispute. A Mercedes driver struck a young man and dragged him for several kilometers through the city streets and hanging him on the hood of the car. I have Rumi Mishra joining me with more details. Over to you, Rumi. Yes, Vaishali, we have the video right here. It was recorded by the man who was paraded for several kilometers across Ranchi. Right here, if I'll play it right again. This is the windshield of the Mercedes car. As we can see, it's been recorded by the guy who was, of course, hit right here. If I just pause it right here, if you see the driver, he looks angry. He's still driving, and he can, of course, obviously see that the driver was on his bonnet as he continues to rush through the area, right? And this here is again the driver. I'll take a pause over here. You see the man again looking very angrily towards. Then you see just a few seconds into this. This is the foot of the bike rider. He is on the car's bonnet. He has, of course, risked his life to make this video out here. He was wearing a helmet as well. But what could be done if a brat driving a Mercedes car just ramps into you and continues to drag you for several kilometers? You also see this man again, his face right here is on our screens. You can see him being very casually, angrily yet casually dragging this man throughout Ranchi. This incident this is the man who was being dragged. He's speaking somewhere, he's saying something. All right, Rumi, hold that thought. I have Manish Mehta joining me from Ranchi. Manish, जो लेटेस्ट जानकारी आ रही है आपके पास, और क्या बता सकते हैं इस बड़े शॉकिंग इंसिडेंट के बारे में? बिल्कुल वैशाली, जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो वीडियोस हमारे दर्शक देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, ये वीडियो जो है वो व्यक्ति जो कि खुद बोनेट पर तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर तक वो ड्राइवर के साथ जो है ट्रैवल करता है, और जिस तरह से वो बार बार गुहार लगाते रहता है कि गाड़ी को रोक दिया जाए, लेकिन जो वकील साहब थे वो मानने को तैयार नहीं थे। इस पूरे मामले में जो वीडियो है उस व्यक्ति के द्वारा ही प्रोवाइड किया गया है, जो हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं। लेकिन अब ये पूरा मामला जो है वो झारखंड हाईकोर्ट पहुंच गया है, क्योंकि इस मामले में 2 इंपॉर्टेंट चीज है। पहला ये कि हिट एंड रन का मामला है, दूसरा ये है कि व्यक्ति की जान तो बच गई, लेकिन जिस तरह से इस पूरी घटनाक्रम का जो वीडियो सामने आया है, इसके बाद जो वहां पर जो रास्ते में जो झारखंड के होमगार्ड के जवान थे, उन लोगों ने उस युवक को बचाने की कोशिश की। और इसमें ये आरोप ये लग रहा है कि वकील के द्वारा जो ड्राइवर थे उन्होंने बकायदा जो है जो होमगार्ड के जवान थे उन्हें भी कुचलने की कोशिश की है। लेकिन अब इस मामले में पुलिस एक्शन में आई है, गाड़ी को भी जब्त किया गया है, वकील को हिरासत में रखा गया है। लेकिन अब ये पूरा मामला झारखंड हाईकोर्ट में जा चुका है। वकीलों का जो संगठन है उन्होंने बकायदा हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस के सामने ये रिक्वेस्ट डाली थी कि इस मामले में वो इंटरफेयर करे और वकील की सुरक्षा को इंश्योर कराया जाए, क्योंकि जिस थाने में उन्हें रखा गया, रांची के डोरंडा थाने में, वहां पर भारी संख्या में जो पब्लिक है वो वहां पर इकट्ठा हो गई है। लोग काफी गुस्से में हैं क्योंकि जिस तरह से वीडियो सामने आया है। लेकिन इसके बाद कोर्ट ने क्लियर कट कहा है कि इस मामले में जो कानून सम्मत है वो पुलिस कार्रवाई करे। किसी भी तरह की कोई रियायत देने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है। लेकिन एक बार फिर से जो है इस मामले में सुनवाई होनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वीडियो फुटेज वाले जो युवक जो आपको दिख रहा है उसका साफ कहना है कि इसमें जो गलती है वो वकील की है। वकीलों ने जो हाईकोर्ट में दलील दी है उनका यह कहना था कि इसमें गलती जो है वो युवक की है, जो कि बोनेट के ऊपर कूद गया और उसके बाद इस तरह की फुटेज सामने बनाया। तो ऐसे में अब इसमें कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है ये तो कोर्ट तय करेगा। लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह से ये वीडियो फुटेज सामने आया है
मर्सिडीज के जरिए हिट एंड रन का मामला बनता हुआ नजर आ रहा है और यही वजह है कि पुलिस इसमें एक्शन में आई है और गाड़ी के साथ साथ जो आरोपी वकील है उन्हें भी हिरासत में लिया गया है। बने रहिए मनीष, मैं आपके पास लौट के आऊंगी। Now, during the incident, Home Guard personnel deployed in the Doranda area saw the car speeding with the young man inside and tried to stop it. It is alleged that the driver even tried to run over the Home Guard personnel and refused to stop the car. मनीष, ये जो लेटेस्ट जानकारी आ रही है ये तो आप हमें बता ही चुके हैं, बट ये कौन था ये आदमी जो गाड़ी चला रहा था, क्या उम्र थी इसकी, थोड़ा बताएं। जो व्यक्ति है ये वकील है, पेशे से वकील है और यही वजह है कि इस मामले में वैशाली कि पूरा जो वकीलों का जो एक संगठन है वो बकायदा उन्होंने हाईकोर्ट में प्ली लगाई, बकायदा उन्होंने इस मामले में चीफ जस्टिस को इंटरफेयर करने के लिए रिक्वेस्ट डाला था। एक बार सोचिए कि इस मामले में ऑलरेडी सुनवाई हो चुकी है, मतलब इस घटना के सामने आने के बाद वकीलों के रिक्वेस्ट पर चीफ जस्टिस ने इस मामले को सुना और उसके बाद उन्होंने डायरेक्शंस दिया कि इस मामले में कानून सम्मत कार्रवाई हो। यही वजह है कि वकील जो है अभी भी अड़े हुए हैं कि इस मामले में वकील की सुरक्षा इंश्योर कराई जाए और इस वजह से एक बार फिर से हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है, होनी है इस मामले में। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो वीडियो फुटेज में दिख रहा है, जैसा कि हम देख भी पा रहे हैं, दर्शकों को दिखा भी पा रहे हैं कि मर्सिडीज कार में बकायदा वकील बैठे हुए थे, युवक जो है किसी बात पर बहस हुई, उसके बाद बकायदा जो है आरोपी व्यक्ति जो पेशे से वकील है वो कार को ड्राइव करते हुए नजर आ रहे हैं और जो व्यक्ति जो विक्टिम है वो बोनेट पर जो है बकायदा लेटा हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस जो बातचीत चल रही थी इन दोनों के बीच में, इस दरमियान वो व्यक्ति वीडियो शूट कर रहा था और यही वजह है कि आप देखिए कि कई किलोमीटर तक जो ये गाड़ी बकायदा जो वकील साहब ने ड्राइव की है उसमें बकायदा उसका जो वीडियो फुटेज है वो आप साफ तौर पे देख सकते हैं और बार बार वो व्यक्ति रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप गाड़ी रोकिए, मेरी जान खतरे में है, लेकिन इसके बावजूद वो गाड़ी को रोकते नजर नहीं आते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस मामले में जो वकील है वो बार बार उनके तरफ से ये दलील दी जा रही है कि व्यक्ति जो है जानबूझ के उनके बोनेट पर कूद गया है, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। इसलिए अब ये पूरा मामला हाईकोर्ट में पेंडिंग है, कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, लेकिन इतना जरूर है इस मामले में झारखंड पुलिस ने बाकायदा एक्शन लिया है और दोषी आरोपी वकील को गिरफ्तार कर लिया है। जी मनीष, आपके पास लौट के आऊंगी मैं। नाउ पुलिस swung into action upon receiving the information about the incident and pursued the accused to his hideout. The young man was safely rescued by the police and has sustained multiple injuries. The accused driver, reportedly a lawyer, has been arrested. The Mercedes car used in the crime has been seized. A case has been registered under sections including attempted murder, kidnapping and obstruction of government work. मनीष, जैसे आप बता भी रहे थे कि जैसे ही अगर वो बॉनेट पे आया भी है बहसबाजी के बाद तो उनको गाड़ी तो एकदम रोक देनी चाहिए थी, वो चला रहे हैं गाड़ी को। बट मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जो अभी बॉनेट है पे आए थे उनकी कंडीशन कैसी है? हमें बताया जा रहा है कि उनको बहुत इंजरीज हुई है। देखिए ऑब्वियस है कि अगर आप इतनी हाई स्पीड में अगर गाड़ी के बोनेट पर व्यक्ति जो है अगर इस तरह से लटका हुआ है और गाड़ी चल रही है बकायदा और वो काफी स्पीड में गाड़ी चल रही है तो निश्चित रूप से वो काफी शॉकिंग होगा किसी भी व्यक्ति के लिए। और ऐसे में उस व्यक्ति की जान बच गई, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन जिस तरह से ये घटना घटी है निश्चित रूप से जो वीडियो फुटेज उस व्यक्ति ने बनाया है उसको देख करके ये किसी के लिए भी आसान नहीं रहा होगा कि वो कई किलोमीटर तक जो है बकायदा बोनेट पर हाई स्पीड में चलना और बार बार रिक्वेस्ट करना कि आप प्लीज गाड़ी को रोक दीजिए। जी बने रहिए हमारे साथ। Now the Doranda hit and run case has now reached the Jharkhand High Court. Hearing the case, a bench headed by Chief Justice M.S. Sonak made a stern remark, saying no one is above the law and the police should take action as per the law. The court refused to grant any relief to the accused advocate. मनीष, ये नई जानकारी आ रही है जहाँ पे जो जज हैं उन्होंने कह दिया कि इस पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए और जिनको अरेस्ट करा है उनको कोई राहत नहीं देनी चाहिए। में ही अपडेट किया था कि ये पूरा मामला हाईकोर्ट में चल रहा है, एक राउंड इस पर सुनवाई हो चुकी है और बिल्कुल 2-2 कहा गया है कोर्ट के तरफ से कि इस मामले में किसी को भी किसी तरह की राहत नहीं दी जाएगी। जो कानून सम्मत है वो कार्रवाई पुलिस करे, लेकिन जो बार बार वकीलों की तरफ से ये रिक्वेस्ट किया जा रहा था कि उनकी जान को खतरा है, बकायदा भारी भीड़ ने उन्हें घेर लिया, तो उस पर उन्हें डायरेक्शन दिया कि उनकी जान को कोई बकायदा पुलिस इंश्योर करे, लेकिन जो विधि सम्मत है वो कार्रवाई होगी। तो निश्चित रूप से ये जो पूरा मामला सामने आया है इसके बाद एक तरफ जहां हाईकोर्ट में मामला है लेकिन दूसरी तरफ
आम लोगों में इस बात को लेके गुस्सा है कि कैसे एक आम राहगीर को बोनट पर जो है बकायदा जो है लटका करके कई किलोमीटर तक चलाया गया। और अगर इस मामले में पुलिस ने अगर एक्शन नहीं लिया होता तो निश्चित रूप से आम लोग और ज्यादा भड़क जाते। यही वजह थी कि देखिए बकायदा पुलिस ने इस वीडियो फुटेज के सामने आने के बाद, लोगों के भारी भीड़ जमा हो जाने के बाद आने के बाद इस मामले में एक्शन लिया, गाड़ी को भी सीज किया गया है, व्यक्ति को भी हिरासत में लिया गया है, लेकिन अभी भी लोग वहां पर जमे हुए हैं। वैशाली। शुक्रिया मनीष हमारे साथ जुड़ने के लिए।